right? So can we have a clap? And NSS clap? Okay, fine. So should I hand it over to you, ma'am? She will be speaking on My Bharat portal. She will be telling you how to register yourself on that. So shall I hand it over to ma'am? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for the crisp introduction. सबके हाथ, हाँ, yes please, come on, जिनके भी हाथ खड़े हैं please, हाँ, आ जाओ तीनों लड़कियाँ, please come ahead. Yes, please. Because my or which is informed by our Prime Minister or the government for social service and everything. Also, everybody who is in NSS, their college or their university post every event which they conduct in their college in My Bharat portal, and all other people who want to be part of it can select that we want to get into this and everything, and everyone can perform this activity or get knowledge about it. Which contingent? Delhi. Delhi. Please. Next. My name is Moksha and I am from Chandigarh contingent. Actually, My Bharat portal is I actually registered is as a youth because I am a part of NSS volunteer. I registered it of course for the activities, but not only for that. It is very broad perspective like internship programs. जो हमें अभी एंटरप्रेन्योरशिप और इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे पता लगती हैं. बहुत सारे प्रोग्राम जैसे आते हैं, अभी भी चल रहे हैं जिस पे मैंने एनरोल कर रखा है. वहाँ से हमें इंटर्नशिप्स के बारे में पता लगता है और हम उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं और फिर हम वो सर्टिफाइड कर सकते हैं. हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है और बहुत सारी और चीज़ें जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं. क्विज आती है माई भारत पोर्टल पे, उन पे हम एनरोल हो सकते हैं जिसके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस भी हैं और हमें बहुत नॉलेज भी मिलती है. तो एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ये बनाया गया है और हर चीज़ से कनेक्ट होने का ये बहुत ही बेटर तरीका है. और सभी अपनी एक्टिविटीज़ इस पर अपलोड करते हैं. इस पर जो एक्टिविटीज़ आती है हम वो कंडक्ट करते हैं. तो एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ये बनाया है और बहुत बेनिफिशियल है. Thank you. Next. I request volunteer organizers. I don't want any volunteer organizer for this session. Please. Good evening, everyone. My name is Zia Rehan, and I'm from the Jammu Kashmir contingent. So this My Bharat portal is to connect youth with the government, and for us, it is important so that we can post our views and we also get to know what government is doing for us. We can take part in different activities, and it is a very important portal because we are connecting each other from different states also, so different state competitions, and then we talk about the internships because in order to excel, we need to have a lot of skills and then get experience in those skills as well. So that is why My Bharat portal is very important. Next. Good afternoon, everyone. I'm Anshika from Madhya Pradesh. मैंने माई भारत पोर्टल हमारे टीचर ने हमारे को इसमें इनरोल कराया. इसका पहला पर्पज़ क्विज था, जो हमने इससे बहुत सारे क्विज दिए. दूसरा ये कि हम आपको इससे अवेयरनेस. Thank you. All the questions, all the answers were very relevant. Hitachi, 1 minute. Very relevant and मतलब near to accurate. Hitachi, yes please. All of them have already added, but I will not speak about portal क्या है because most of, I hope everybody understands English. Should I switch to Hindi? English. Okay. Yuva portal. It was tried to bring all the youth of the country under one umbrella. Earlier, when it was Yuva portal, and we registered for it in 2023. Quite early, maybe in January. Then the portal was renamed as My Bharat on 31st October 2000, last year. And this year we celebrated anniversary of My Bharat portal. ठीक? The purpose was कि हमारा youth
our youth जो कि बिखरा पड़ा है, scattered. I'm just telling you the vision behind this program. The youth is scattered on different websites. How many of you are Instagram? How many of you are on Instagram? नीचे करो हाथ. कौन पुरानी है जो नहीं है Instagram पे? Okay, thank you. How many of you are on Snapchat? करो हाथ नीचे. कौन है जो नहीं है? ठीक है. तो Instagram की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है as compared to the Snapchat followers. May I know the reason why? मतलब why Instagram? Other than the filters. नहीं. क्यों रजिस्टर किया Instagram पे? फिल्टर को छोड़ के, अपनी रील्स और फिल्टर को छोड़ के. What is the purpose? Yeah. I mean, other than reels, it's a good source of entertainment, definitely. Entertainment. Okay. Yeah. Next. And also, it gives a lot of good news. हाँ? प्रीतम भैया, प्रीतम कहाँ है? मैम नहीं मुझे उसको हाँ ठीक. But you get the information. मैम एक मिनट बेटा. You got the information. Yes. Yes. This is a very important point. To showcase your talent. किसको? To the world. नहीं. One person at one time. To showcase your talent. किसको दिखाना talent? To the larger audience. ठीक? Yes. Mom, it's a good way to connect with the larger audience, with much more people. Audience. Same Next. interest. Yes. वो खड़ी हो गई. मैम इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस पीपल आल्सो लाइक स्मॉल बिजनेस प्रमोट करता है ज्यादा. Business promotion. Next. It is a platform to showcase your creativity, your skills, and then also connect with other people as well. Yeah. Next. Yes. To know trends. जल्दी बोलना. Trends. Next. What is trending in Instagram these days? नहीं. I'm celebrating. Kali Activa da. What else is trending? Who is trending on Instagram? आजकल which celebrity? दिलजीत. Ma'am, Illuminati. Illuminati. मैम राहा कपूर. ओके. हाँ. अब मुझे बताओ. इससे पहले मैंने माई भारत पूछा तो 4 बच्चे आए यहाँ पे. I asked Instagram and the house is there. Because you know the application of Instagram and that gave sensitization to someone sitting in the ministry कि यार Instagram में क्या है, सारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, सारा यूथ बैठा है, मतलब कार्दियाँ वेलियाँ जनानियाँ पंजाबी में the ladies sitting idle at home even they are on Instagram. हाँ? It's very easy to interact on Instagram. किसी की वीडियो देखी, पड़ोस की देखी, घर की देखी. The purpose was to connect. And the government came up with the idea, यार हम इतना पैसा खर्चते हैं NSS के थ्रू या गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, हमारी ऑडियंस कहाँ है? हमारी ऑडियंस थी कहाँ पे? Instagram पे. हमारी ऑडियंस थी कहाँ पे? Snapchat पे. So it was thought, let us create another platform and bring our audience there. But before going international, we started to connect our youth. तो फिर गवर्नमेंट को लगा let us create an Instagram for the government, kind of, for the youth. So whatever you are getting on Instagram in an entertainment way, you are getting on My Bharat also. पर थोड़ा सा आपको बोरिंग तो लगता होगा. My Bharat लगता होगा ना थोड़ा बोरिंग. कितनी बार दिन में चेक करते हो My Bharat? Never. जब तक पीछे से मैसेज नहीं आता My Bharat चेक करो. कितनी बार चेक करते हो Instagram? नशा है ये. Isn't it? You are addicted to it because they feed you what you want. You want to be updated about the next show of Diljit Dosanjh? It tells you. You want to be where is Raha Kapoor and how she's growing. It gives you the information. It gives you everything you like. तो गवर्नमेंट को लगा कि पेपरों से काम नहीं होगा, पढ़ाइयों से काम नहीं होगा, academics से काम नहीं होगा. Let us move to the platform where youth is already registered. So they created another platform. So you can easily say it is Instagram for the youth of India. उधर मत बोलना मिनिस्ट्री में मैंने ये बोला. मतलब
मुझे इसके पीछे जो पर्पस लग रहा है दैट इज एक्चुअली दिस। अब क्योंकि जो बच्चे रजिस्टर नहीं है वो हाथ खड़ा करेंगे। एनीबडी हु इज नॉट रजिस्टर्ड, यस प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीबडी हु इज नॉट, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर रजिस्टर नहीं हो। एनीबडी हु इज नॉट रजिस्टर्ड प्लीज रेज हैंड्स। I request the POs to please cross check whether their volunteers are registered on My Bharat or not. And one thing let me tell you, अब यहाँ के आप लोगों ने most of you talked about कि ये हमें क्या provide करता है, but nobody asked me कि मैडम ये जो NIC आप करवा रहे हो इसको आपने My Bharat पे इवेंट क्रिएट किया कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं पूछा। समझ, are you getting me what I am trying to say? Now the students came here and they explained this is the advantage of My Bharat. You get to know everything. Why didn't you ask me, ma'am, is this program is registered on My Bharat? Have you created the event? Event समझते हो? समझते हो event? जैसे दिलजीत दोसांझ का कोई टूर है तो वो 3 दिन पहले अपनी रील डाल देता है, क्या टिकट्स खरीद लो, और अगले 10 मिनट में आता है टिकट्स बिक गई, है ना। You landed here, you kept on asking me, ma'am give me the schedule of tomorrow, ma'am give me the schedule of culture, ma'am declamation में क्या होगा। Weren't you asking me? Everybody was asking me. But अगर आपको actually पता होता कि My Bharat क्या है, you would not have asked me. You would have asked me, ma'am, is the event created on My Bharat or not? Because अगर मैं आपको उस इवेंट का लिंक दे देती, और दिस इज द रीजन आई डिडंट रजिस्टर ऑन माय भारत। इवेंट मैंने क्रिएट नहीं किया है बिकॉज आई वांटेड टू फ्रॉम योर एंड कि वेदर यू नो द इवेंट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड ऑन माय भारत, अदरवाइज you will not be having any benefit of sitting here. That's why I am saying whosoever is not registered will not be getting the certificate. So I will create the event today. ठीक है, इवेंट क्रिएट करने का प्रीतम कहाँ है? आकाश प्लीज देखो प्रीतम कहाँ है। मतलब क्या है, जैसे शादी होती है ना किसी के घर में, 15 दिन पहले हम इनविटेशन भेज देते हैं। ऐसा तो नहीं होता आप शादी में पहुंच गए और उनको पूछोगे दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। डिड यू आस्क दिस? यू नो द शेड्यूल, you know the schedule, and that is actually the purpose of My Bharat. Before landing here, आपको My Bharat पे चेक करना था। मैंने ये इवेंट क्रिएट किया था, but nobody asked me. तो मैंने कहा इसको रखो चादर में, I'll talk to you and then get to know. देखो आपको किसी ने कह दिया My Bharat का फायदा ये है, तो फायदा लेना भी तो आना चाहिए। पता होने से तो फायदा नहीं आता ना, समझ आ रही है? पता होने से आपको फायदा नहीं आएगा। मुझे ये रजिस्टर करना था 3 तारीख और मैंने ये रजिस्टर किया 1 तारीख को। 1 जनवरी को आई रजिस्टर्ड दिस NIC and My Bharat, but I didn't receive a single call from any of the volunteer, not a single message from any of the volunteer. मैम हमें अपना इंटरेस्ट कहाँ शो करना है? My Bharat पे जब कोई इवेंट क्रिएट होती है ना, एनी इवेंट ऑफ NSS, एनी इवेंट, आगे से गवर्नमेंट आपको प्रोफाइल, अगर आप सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर NSS अवार्ड, I hope all of you must be knowing there is an NSS award for volunteer every year. Government of India gives it 1.5 lakh rupees plus a citation and medal. ठीक है, तो गवर्नमेंट आपसे पहले क्या बोलती थी, फाइल भेजो अपनी, है ना, तो फाइल साइन होती थी, ऐसे जाती थी। अब ये फाइलें नहीं साइन होंगी, अब वो बोलेंगे जैसे आजकल रिश्ते होते हैं जो बोलते हैं लड़के का इंस्टाग्राम हैंडल दे दो, देखें तो करता क्या है, करते हैं ना ऐसे। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। The government is not going to ask you अपनी फाइल दे दो, they'll ask provide the URL of My Bharat. I don't think anybody of you know what is the URL of your My Bharat. You know? बिना फोन चेक करे मुझे बताओ, कोई बच्चा जो अपने My Bharat का URL जानता है, और बिना फोन चेक करे मुझे बताओ anybody who doesn't know the Instagram ID. सबको पता है ना अपनी Instagram ID. How come you don't know the My Bharat URL? Government is not going to ask you give us the hard copy of your certificate attach कर दो और डाल के भेज दो। No, in another 2 years everything is going to be on My Bharat. Government is not going to ask you फाइल साइन करके दे दो, PO से साइन करवा के दे दो। No, आपका PO आपको My Bharat पे रजिस्टर करेगा, उधर वेरीफाई करेगा। अगर आप उधर नहीं वेरीफाई, उसके पैर पकड़ो, कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है? तो जिस पर्पस के लिए आप इधर बैठे हो, आप अभी उस पर्पस में रजिस्टर ही नहीं हुए हो।
आपने ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया इस प्रोग्राम के लिए? एवरीबॉडी डिड? NIC किया ना रजिस्टर सबने? सबने मुझे हार्ड कॉपीज दे दी? ये आपके किसी काम की नहीं है अनटिल मैं इसको माई भारत पे अपलोड नहीं करती हूँ। आज ही जाके मैं माई भारत पे ये इवेंट क्रिएट करूंगी। एवरीबॉडी ऑफ यू विल बी शोइंग देयर इंटरेस्ट इन दिस प्रोग्राम कि हम आए हैं, हम इधर जम्मू कश्मीर में परेड कॉलेज में, क्योंकि आई विल पुट द लोकेशन देयर, बैठे हैं। तो जो भी आप कर रहे हो ना, आपने उसी दिन उसी इवेंट में जाके अपनी फोटो डाल देनी है, तो पता चलेगा ये बच्चा यहाँ प्रेजेंट है। एंड एट द एंड जब ये इवेंट खत्म हो जाता है, मतलब ऑन 9th of January वहां पे आपका इंटरेस्ट 0 हो जाएगा एंड यू विल बी गेट, जिन जिन लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है मैं उसको क्रॉस चेक करूंगी अपने हैंडल से कि क्या ये बच्चा यहाँ आया था। Few of the contingents replace their volunteers at the 11th hour and give me a call, मैडम ये बच्ची नहीं आ रही है, किसी और को ले दिया। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। अब जो नहीं आई, अगर वो घर बैठ के इंटरेस्ट शो कर देती है, और जो आई है उसने इंटरेस्ट शो नहीं किया, उसको नहीं जाएगा सर्टिफिकेट, चाहे वो मेरे से हार्ड कॉपी लेके चला जाए। गवर्नमेंट विल नॉट लिसन टू यू। So every event you are attending under NSS, you need to ask the organizer, madam or sir, is the program registered on My Bharat? Have you created the event? और अगर वो कहता है yes, ask for the link जिसमें आपको जाके अपना इंटरेस्ट शो करना है। माई भारत की खूबियां जानने से कुछ नहीं हो जाएगा यहाँ, ठीक है? किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस पता होना और उसकी यूटिलिटी को एक्चुअली यूज कर पाना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। इधर आके मुझे बच्चों ने बताया और हाँ 100% श्योर, अभी गूगल करोगे 2 मिनट में पता चल जाएगा माई भारत का क्या है। बट आई वॉज वेरी श्योर कि जब तक एटलीस्ट कल तक तो मैं श्योर हो चुकी थी कि आपको माई भारत की रियलिटी नहीं पता है, बिकॉज नोबडी केम टू मी, यू केम टू मी फॉर योर ग्रीवियंसेस, दैट इज वेलकम। आई एम नॉट सेइंग डोंट कम फॉर योर ग्रीवियंसेस, बट यू डिडंट कम फॉर योर सर्टिफिकेशन। मैडम क्या करेंगे सर्टिफिकेट का, ये तो उधर गवर्नमेंट तो देख ही नहीं रही है। तो आप जो भी इवेंट अटेंड करते हो अंडर एनएसएस, मेक श्योर योर पीओ और whosoever is calling you to attend the event has created the event in My Bharat. You have shown interest in the My Bharat. Where you go, you click a geotag photo, put it on the My Bharat, and then create your certificate, and automatically an automatic certificate will be created in My Bharat and will be delivered to your CV. There is one column in My Bharat, CV builder, you know? CV builder क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, आपका सारा CV उधर बिल्ड हो रहा है। चाहे इधर जितना नाच कूद लो, अगर उधर रजिस्टर नहीं हो वहां आपका CV 0 है। Are you getting my point? कोई भी NSS इवेंट करने के लिए जाते हो, इवन कि एक दिन की रैली के लिए जाते हो, आस्क रजिस्टर है, इवेंट क्रिएटेड है, लिंक दे दो, तो लिंक मिल गया, रजिस्टर करो, देन गो। अदरवाइज इन इट इज एक्चुअली फिजिटल प्लेटफॉर्म। सुना नाम ये फिजिटल, सुना वर्ड ये फिजिटल? यू माइट हैव हर्ड फिजिकल और डिजिटल। माई भारत इज फिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल। You are physically here but not digitally on My Bharat for this event, so you are not in the event. You are digitally there but not present physically here, again you are not on the event. Event का मतलब है physically आप जहाँ खड़े हो उसकी digital presence होनी चाहिए. If you are not present digitally or physically, you are not certified on My Bharat, and if you are not certified, government is not recognizing you. बैठे रहो इधर 7 दिन, घूमते रहो जम्मू कश्मीर। सो वट एवर इवेंट, आई रिक्वेस्ट द पीयूज कि मैम जो भी बच्चे, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के हों या नहीं, किसने अपने आप को रजिस्टर किया हो, रजिस्टर योर सेल्फ ऑन माई भारत इफ यू वॉन्ट टू रिमेन इन NSS। खैर इट इज नॉट ओनली फॉर NSS, एनी यूथ कैन रजिस्टर, लेकिन जितना फायदा इसमें NSS के बच्चों को है वो एक नॉर्मल यूथ को नहीं है। मतलब एक यूथ को तो पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है हाउ टू हैंडल, यू नो हाउ टू हैंडल इंस्टाग्राम ना, यू नो, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग बेनिफिट। अब अगर आपको इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील ही देखनी आती है, बाकी तो कोई बेनिफिट नहीं ले पाओगे ना आप। फॉर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इंस्टाग्राम, फॉर स्प्रेडिंग योर ऑडियंस, यू नीड टू नो द फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम। कितने मिनट की रील बनती है, कौन सा फिल्टर लगाना है, कैसी वॉल्यूम है,
You should know this, na? Similarly, for getting benefit of My Bharat, you need to show interest in any event you are participating in. तो आगे से जब अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी जाओगे, अपनी टीचर को ज़रूर ये बोलिएगा, टीचर ने कह दिया आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ एक एंटी करप्शन पे एक लेक्चर करवाना है. सपोज somebody, टीचर बोलते हैं ना कई बार, मैं भी बोलती हूँ बच्चों को, हमें प्रेशर होता है ये प्रोग्राम करवाना है, तो हमने कहा आ जाओ सारे प्रोग्राम करवा लेते हैं. आप चले गए, बट द इवेंट वॉज नॉट क्रिएटेड. आप 8 तारीख को इवेंट आपने अटेंड किया, 9 तारीख हो गई, इवेंट क्रिएट नहीं हुआ, आपकी प्रेजेंस 0 है. अब अगर मैं 9 तारीख से पहले माई भारत पे ये इवेंट क्रिएट करवा के आपको उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करवाती हूं, you are not present here in the files of government, you are not present here. You need to be present physically and digitally, that means digitally, on My Bharat platform. So first point is to register. I will create event tonight only after getting confirmation from all the POs that all of you are registered on My Bharat. And tomorrow, in tomorrow's session, I'll be taking only half an hour session tomorrow also. In the tomorrow's event, I will let you know how will you show interest in that event, how will you add your photo in that event, how will you add your location in that event, and how is it linked to your CV. ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस दिन का एक फोटो विद लोकेशन अपने सीवी में डाल देना. अब देखो हमारे कॉलेज की एक लड़की गई आरडी में या किसी भी कैंप में, तो मुझे आई गॉट ए कॉल फ्रॉम दिल्ली, मैडम इवेंट क्रिएट करो, किसका, आरडी का, या आपका बच्चा आरडी में गया है. आई क्रिएटेड द इवेंट एंड डेली द स्टूडेंट कैप्स, शी कीप्स सेंडिंग मी फोटोग्राफ्स, और मैं उसकी फोटो डालती हूँ कि आज उसने आरडी में ये किया. अब मुझे क्या पता वो दिल्ली में क्या कर रही है ना. आई डोंट नो वेदर शी इज इन सीपीआर जनपथ और शी इज इन एक्चुअली इन द जेएलएम स्टूडियो स्टेडियम, यहाँ पे आरडी होता है, आई डोंट नो, बट शी डेली की मुझे वो अपनी जियो टैग फोटो भेजती है, मैं उसको अपलोड कर देती हूँ, एंड देन द पर्पस इज सर्व्ड. अदरवाइज वो बैठी रहे आरडी में, उसके सीवी में वो ऐड नहीं होगा. अभी तो बिकॉज वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम फिजिकली टू डिजिटल, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग योर सर्टिफिकेट्स, फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, बट within a period of 2 years, अगले 2 सालों में all these physical certification will vanish and you will be getting certificates generated on My Bharat. Government is very seriously working on it. And today I got a call from one of my students in Kashmir कि मैडम मेरे घर कोई आया है regarding युवा भारत, not My Bharat, युवा स्कीम. सुना है नाम युवा स्कीम? नहीं सुना? अगेन इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, युवा स्कीम. मैडम वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपको किस में इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा बताओ. मुझे नहीं पता किस में इंटरेस्ट है, आप बताओ. मैंने कहा किस में, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर, आर यू लुकिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, आर यू लुकिंग फॉर रियल एस्टेट, आर यू लुकिंग फॉर एजुकेशन. कहता मुझे नहीं समझ आ रही है, आप जो बोलोगे मैं लिख दूंगा. तो मैंने उसको बोला कि लिख दो आई एम वॉलंटियर फॉर माई भारत. ठीक, तो कहता ओ क्यों था, व्हाट इज दिस माई भारत. तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको समझाया. देयर आर 2 पैरेलल थिंग्स गोइंग ऑन, माई भारत एंड युवा स्कीम. युवा स्कीम प्रोवाइड्स यू skill according to your interest, and My Bharat connects you with Yuva scheme. This My Bharat portal tells you कि what is there in the basket of government for you. ठीक है, and what a student sitting in Kerala is doing. अगर उसका प्रोफाइल आपके जैसा है, मतलब suppose I am PhD in chemistry and someone is PhD in chemistry sitting in Coimbatore और उसको मुझसे ज़्यादा पैकेज मिल रहा है सपोज, तो मैनू उतने मिल रहा है 20,000, ठीक है, सपोज करो मुझे मिल रहा है 20,000, उसको मिल रहा है 2 लाख, तो मैं सोचूंगी ना आई शुड मूव टू केरला. भाई सेम प्रोफाइल है, अगर आपको लगता है माई भारत पे somebody is having same प्रोफाइल और यार वो तो 50,000 कमा रहा है किसी NGO के साथ, तो मैं क्या कर रही हूँ, तो you will connect with that person. How come you are earning such this amount with the same profile? So it is actually connecting the youth other than using the platform other than Instagram. तो आपको अपना माई भारत का URL पता होना चाहिए और आपको जिस भी इवेंट में जाते हो, NSS में
वो माई भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए. That's all from my side. Thank you. Activities like these for you all anywhere she can. She was the one who was in what was that, College on Wheels, right? So she was the one who was instrumental in that as well. And she's always been very encouraging and forthcoming with students, right? So thank you very much, ma'am, for being here. मैम को सीरियस मत लेना, ये सारा कुछ मैंने बोलने के लिए बोला था. Right. ये अंडर द टेबल पकड़ा रही थी मुझे, आगे पकड़ती हूँ. Different states, different volunteers, they come, they mingle with each other, with cultural program you attend daily, evening, and other programs also. Seminars, workshop, you have the knowledge. Today's program, this lecture session was based on My Bharat portal. So ma'am has told you earlier all the things. So what are the benefits of this platform? And why NSS volunteer, they have to register on this portal? Because maximum youth, they are scattered and we have to combine all. Integration means we are integrating all the volunteers at one place, single platform. So all the events they are organizing in any state, you can just check. You are registered here, you can just check that what program is going on, what competition is coming. So you will get benefit every day. Every day-to-day life you can check here, every program. Then what is the meaning of national integration in other senses? Can anyone tell me? Rather than culture, language, food, other student. One from Tamil Nadu student. Reply me, what is the meaning of national integration? Tamil Nadu team. Karnataka team. Delhi team. Yes, Peter, please speak out. What is the meaning of national integration? National integration, one or the other way, glorifies the concept of Akhand Bharat. So I think that is the core concept of this initiative. What is the meaning of Akhand? Please speak in English. Akhand actually is made up of two parts. Which is without, not breakable. without any partition or unbreakable. Yes, without any participation means there is no discrimination, any caste, creed, we don't need to accept all these things. We all are one at single platform. You all are NSS volunteers here, right? So National Integration Camp teaches us many things. Anyone knows what is the meaning of NSS? Every day we are saying NSS. What is it? No, not like this. Only raise your hands or single. Any team from Rajasthan. What is the meaning of NSS? Rajasthan team. Yes, National Social Service. National Social Service. हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बेटा? राष्ट्रीय सेवा. We leave the word scheme. We are just taking two words. National Service. राष्ट्रीय सेवा. सेवा जब ये आ जाती है बेटा, sit down please. कहाँ से शुरू हुआ था? ये जो हमारा मिशन है, that was started by Mahatma Gandhi on 2nd October. That day we have started this. And the basic aim behind of NSS means that we all are here for the service of humanity, kindness. We must have the kindness, helping each other. सेवा means क्या होता है? आज गुरु पर्व है, जो पंजाब टीम है वो सारी जानती है, जम्मू वाले सिख जो है वो भी जानते हैं. गुरु पर्व है. गुरु पर्व का मतलब बेटा सिख धर्म जो चलाया था, रिलीजन, that was based on service for others. Motto interconnected with it. Not me, but you. Everybody knows what is the motto of NSS. When we ask motto, not me, but you. But are you practically doing it? Every NSS volunteer must carry it with sir. For me, I'm working with NSS from last 10 years, and NSS gave me everything. My identity is from NSS. But NSS is
like blood in my veins. So I love every and each volunteer, every faculty, all are the volunteers. I love from my bottom of heart. And you must have seen in my behavior also. There is no one is that Tamil Nadu or Rajasthan or Punjab. No, all are NSS volunteers, and we are for the service. तो कुछ चीजें बेटा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों से जितना अच्छा बिहेवियर सोसाइटी को उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है, द गुड बिहेवियर फ्रॉम योर साइड, इतना किसी और से नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों से। जब भी कोई कहेगा NSS वॉलंटियर मीन्स ही विल बी वेरी काइंड। यू आर फ्रॉम NSS? यस। सो यू मस्ट क्रिएट योर आइडेंटिटी थ्रू NSS, शोइंग योर बिहेवियर। अब मैं यहाँ पे भी देखती हूँ बेटा, आप कोई भी बच्चा मैंने ऐसा नहीं देखा जो सभी NSS POs को, कॉलेज की फैकल्टी को भी कोई विश करता, जो अपना क्या है, यहाँ पे सब अपने हैं, देयर इज नो डिफरेंस। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स। NSS वॉलंटियर्स, जय हिंद होता है, जय हिंद। नोबडी इज सेइंग दिस वर्ड, आई हैव नॉट सीन। तो वॉलंटियर, NSS वॉलंटियर मीन्स जय हिंद, मीन्स वी आर वन। जय हिंद का मतलब वी आर वन, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। We are just celebrating, we are just making the joy of our nation, right beta? So everyone have to wish, every faculty, regard your seniors even. तो NSS बेटा मैं इतना ही कहना चाहूँगी, यही सब सिखाती है कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर, और आपको मैनरिज्म, आप दूसरों से डिफरेंट हैं। When you are having a cap or anything NSS, wearing your NSS jersey, that is showing that you are something great than others. So you must follow all the rules and regulations, discipline. हमें बार बार बोलना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें बेटा, आप बच्चे हो, आपको सब कुछ सीखना है। ये सारी चीज़ें कुछ ज़रूरी नहीं, हम भी अपने वहाँ से सीख के नहीं आए हैं, हमने भी सीखा है। हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। We are learning from you also, कि आप लोग कितना अच्छे से बहुत चीज़ें क्रिएटिव हैं। डांस है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट? एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, लेकिन हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। अभी लास्ट डे हम एक सरप्राइज रखेंगे आपके लिए, लेट्स सी, उसका मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो आप एक दूसरे से, हिंट मैंने दे दिया है कि एक दूसरे से आप क्या सीखते हैं, व्हाट यू लर्न फ्रॉम ईच स्टेट। सो विल मेक some special program. I hope so. You will prepare your. Some student must understand what I mean to say. Okay. तो और कुछ मेरे से आपको कुछ एक्सपेक्ट हो, किसी PO से आपको कुछ एक्सपेक्ट हो, आप लोगों को खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, टाइम डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, हमें बार बार बोलना ना पड़े ना। यू NSS वॉलंटियर, एवरीबडी से प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट। और आप लोग सुनते ही नहीं है बेटा। NSS वॉलंटियर दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, गाइड करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। वी जस्ट आपको अपने आप डिसिप्लिन मेंटेन, आपको लाइन बनानी है, आपको बस में जाना है, कौन बस बता दी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, यू शुड कोऑर्डिनेट। टाइम को मैनेज कैसे करना है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। 7 से 8 आपने मान लो ब्रेकफास्ट करना है, और 8 बजे आपने मूव कर जाना है, या 8 से 9 बजे हमें मूव करना होता है। 9 बजे 8 बजे हम 8:30 आए हैं, जैसे आज का इंसिडेंट लेते हैं, 8:30 आप आए, 9 बजे तक यू आर NSS वॉलंटियर, यू विल एडजस्ट। कैसे करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, यू आर डूइंग। मैंने देखा है बहुत सारी टीम्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, रेडी होने में हेल्प करती हैं, और भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है। तो दिस शुड बी द इंटेंशंस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मैंने फर्स्ट ईयर में NSS ज्वाइन किया था, मैंने +1 +2 में ज्वाइन किया था, पर कोविड का टाइम था, तो हम जब कुछ सीख नहीं पाए, बस वर्क कर पाए, पर कैंप नहीं लगा पाए थे। पर जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आए, तो मेरा विज़न जो NSS को लेकर था, कुछ तो कहते थे कि NSS सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, फिर वो थे कि इसमें कुछ खाने के लिए मिलता है, फीस होती है, रिफ्रेशमेंट होती है। पर मेरा विज़न था कि मुझे आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद सोशल सर्विस करनी थी, लाइक सिविल सर्विस। तो मेरा पर्पस था कि इसमें प्रॉब्लम्स, NSS प्रॉब्लम्स देखती है सोसाइटी की, क्या क्या प्रॉब्लम्स है या क्या क्या हमारी कम्युनिटी से मिलती है, और मुझे इंटरेक्ट करना बिल्कुल यह था।
+2 तक जैसे साइंस की फील्ड होती है तो आप ज़्यादातर अपनी बुक में डूबे रहते हैं। तो मुझे सोसाइटी से इन्वॉल्व होना था। तो जब मैंने एनएसएस ज्वाइन किया तो मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट हुई। पहले तो हुई नहीं इंटरेक्शन, बाद धीरे करके हम इंटरेक्ट हो गए। बाद में जब 2 साल कंप्लीट हुए, लास्ट साल तक मैं पहुंची, तो जो टीचर है 3000 की स्ट्रेंथ है हमारे कॉलेज में, पीजी कॉलेज में हाल में। तो जो टीचर है वो मुझे इसलिए जानते कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, वो मुझे इसलिए जानते थे। मैं हैरान थी कि आप एनएसएस के स्टूडेंट हैं ना। उन्होंने काफ़ी बार मुझे देखा था, आप एनएसएस के स्टूडेंट हैं। मुझे वहाँ से ये महसूस हुआ, आई रियलाइज दैट कि माई आइडेंटिटी इज फ्रॉम एनएसएस रेदर देन कि आई एम विच मैं किस ईयर में हूँ, किस सेमेस्टर में हूँ। आई नो फ्रॉम बिकॉज ऑफ एनएसएस। थैंक यू वेरी मच। दिस स्कीम प्रोवाइड मी अ डिफरेंट विजन एज वेल। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर के जो वॉलंटियर्स आए उनसे एंड जम्मू के भी, तो लाइक इट क्रिएटेड ऐसी मतलब थिंकिंग हमारे अंदर कि ओके जो हम सोच के आए थे वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। मैंने बाकी स्टेट्स के साथ भी, बाकी स्टेट से भी मैंने बात की है, तो मैंने सारी मतलब थोड़ी थोड़ी स्टेट्स की इंट्रोडक्शन सीखी है। तमिलनाडु से वड़कम, कश्मीर से अस्सलाम वालेकुम, एंड हम चंडीगढ़ वाले तो नमस्ते करते हैं, और बाकी से और वैसे तो जय हिंदी, बट मैं बाकी स्टेट से भी इंटरैक्ट कर रही हूँ एंड इट फील्स लाइक कि मेरा फर्स्ट ऐसे कोई इंटीग्रेशन कैंप है एंड इट फील्स लाइक कि एक ही जगह पे हम बहुत सारी स्टेट्स घूम चुके हैं एंड हम लोगों ने पीओस के साथ भी बहुत इंटरैक्शन की, नॉट ओनली हमारी चंडीगढ़ की पीओ से बट अदर स्टेट्स की भी। तो बहुत ही स्वीट है सब एंड इट फील्स लाइक कि हाँ अब हम इंडिया में ही है, इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम एक ही जगह पे रहेंगे, लेकिन मिनी इंडिया जैसे सर ने कल कहा था। बट या मेरे को इतना ही कहना था कि इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर हियर एंड एवरीवन इज वेरी स्वीट एंड I have never been around so many women, honestly. I come from a co-ed school in college and I always used to wonder ki, how would it feel? But then it is a beautiful experience, I must say. So like the way we have been interacting with every girl and बस मन से निकलता है you look beautiful, I love you and you are so amazing, बस मन में यही आता है. And it is so lovely to meet you all girls here. I know Jammu Kashmir में भी बहुत misconceptions है, but then like I have visited many states and मतलब बट यहाँ स्पेसिफिकली आके आप सब लोगों का वेलकम करने में वी फील सो प्राउड एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम से हम मिल पाए एंड आई होप आपका यहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। बोलना चाहती हूँ कि लद्दाख में टेम्परेचर जो है जब हम आने वाले थे तब था -20 -18 के अराउंड। तो उस टाइम जो है हमारा फर्स्ट डे में प्लेन भी कैंसिल हो गया था, हम नेक्स्ट डे पहुंचे थे। लकीली उस दिन एक ही जहाज उड़ा और वो हमारा ही वाला प्लेन था और सारे कैंसिल हो गए। तो पहले मुझे लगा, एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी, पहले मुझे जो मैं पहले भी एनसीसी में थी, मैं उस टाइम कैंप ज्वाइन किया था, मुझे लगा इतना अच्छा नहीं होगा लगा था, बट यहाँ आने के बाद यहाँ पे रहना, आपकी हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी है जितने भी शब्द बोलूँ वो कम है। और मैं लद्दाख के बारे में बताऊंगी कि यहाँ लद्दाख का कल्चर पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ लद्दाख में एक तो ट्रेन भी नहीं चलती, ना रोड भी बंद हो जाता है, सिर्फ जहाज़ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है सर्दियों में। और लद्दाख में मेन रिलीजन ज़्यादातर बुद्धिस्ट और मुस्लिम मेन रिलीजन है और वहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइब है, ब्रोकपा ट्राइब है, शीना ट्राइब बोल के है, वो सारे ट्राइब्स रहते हैं। और लद्दाख का मेन ड्रेस जो है कोस है और वहाँ पे खाना जो है पाबा, थुप्पा, वहाँ पे रोटी होता है, खम्बीर, वो सारा बहुत फेमस है। और वहाँ पे बहुत सारी सुंदर जगहें हैं, पेंगोंग लेक तो सबने सुना होगा, बट वहाँ पे कारगिल साइड दराज विलेज है, वहाँ पे टुलिप वैली बोलकर है, वो काफ़ी सुंदर है अगर आप वहाँ जाना चाहो। और वहाँ पे ब्राउन बेयर की साइटिंग भी होती है और वहाँ पे बहुत
बहुत ऊंचे ऊंचे पासेस भी है। और मैंने एनएसएस जो है अभी ज्वाइन किए हुए 1.5 साल हो गए मुझे, और मुझे लगा एनएसएस जो है नेशनल सर्विस स्कीम, तो हमें लगा कि नेशनल कुछ सर्विस करने को मिलेगा, इसलिए मैंने एनएसएस जो है ज्वाइन किया था। और सबसे अच्छी बात एनएसएस की ये है कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और मैं सारी एक्टिविटीज में घुस जाती हूँ एनएसएस की। और बहुत अच्छा एक मंच है एनएसएस हम अपने आप को दिखाने के लिए। और अभी तक मैं जम्मू कभी नहीं आई थी, एनएसएस की वजह से ही मैं जम्मू आ सकी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जम्मू आने से पहले। ताकि एनएसएस वो हमें पढ़ाते थे, कहते कि एनएसएस में ऐसे फ्री ट्रिप्स होती है जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, और आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके करियर के लिए अच्छा है, ऐसे ऐसे करके हमें कन्विंस कर लिया और हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज हम समझते हैं कि आज हमने उस टाइम पर जो डिसीजन लिया था एनएसएस ज्वाइन करने का, वो सबसे बेस्ट डिसीजन था हमारे कॉलेज का। एंड आई एम वेरी प्राउड कि आज जो लड़की जिसकी फैमिली में अभी कोई लड़की ऐसे घर से बाहर नहीं निकली, और मैं घर में पहली लड़की हूँ जो इतनी दूर घर से आई हूँ, और मेरी फैमिली प्राउड करती है कि हमारी बेटियाँ जैसे करती है जिसमें कभी किसी ने लड़की को अलाउ नहीं किया था। एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड जब से हम यहाँ पे आए हैं हमने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, जैसे चंडीगढ़ हो गया, ये बहुत तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, सिक्किम हो गया, कश्मीर हो गया, इतनी सारी स्टेट्स हैं। मुझे याद नहीं रहता कौन किन के नाम है, लेकिन शक्लें पहचान जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम पंजाब वाले से हमारे पंजाब के ही हैं, लेकिन हमने पहली बार मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। सो पंजाबी जी देखा जाए तो मैं बहुत खुश हाँ कि मैं एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि मैं एनएसएस ज्वाइन किया सी, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी हैप्पी ते एट द एंड सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैंप था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था कि मेरे मन में ये ख्याल था कि जम्मू एंड कश्मीर में रिलीजियस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में। पर मैंने यहाँ पे आके ये मतलब ये एक्सपीरियंस करा कि यहाँ पे वहाँ से भी कम है डिफरेंस। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पर मेरे मन में एक सवाल भी है, मैं पूछना चाहती हूँ स्पेशली कश्मीर के लोगों से। जो कश्मीर फाइल मूवी है सबने देखी है, तो इस कश्मीर फाइल रियल थिंग, मतलब वहाँ पे सच में ऐसा है? That is not real. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो सामने से दिखता है हमें नहीं पता चलता। बच्चे, this is not the platform to ask such questions. I'm proud, and I want to thank you all for being so sweet and telling about your culture, and I just want to thank you all because again you guys are very sweet and I love you so much. Thank you. हम साउथ से हैं और वो नॉर्थ में जा रहे हैं, कैसे वो फ्रेंड्स कैसे हमसे बात करेंगे या नहीं, हमसे मिंगल होंगे नहीं, पर यहाँ आके देखा कि उतना कितना फ्रेंडली हो आप सब लोग। मुझे तो ऐसे लग रहा कि घर जैसा फील हो रहा सच में। एंड आई वांट टू शेयर माय फेवरेट, लाइक हमारे कॉलेज के बारे में बोल रही हूँ। लाइक हमारे कॉलेज मेनली एनएसएस ओरिएंटेड कॉलेज है and we have a biggest achievement, like we planted 10,000 plants around the all state. आप Google में जा सकते हैं and I belongs to the world's best taluks in the north. You can Google it, like you can check which is the world's best taluk. And हमारे तालुक में जितने भी प्लांटेशन किए वो सारे हमारे पाटिल कॉलेज के द्वारा ही किए गए। लेकिन सिर्फ हमको ही नहीं, पूरे देश को कैसे स्वच्छता से बचाना है, कैसे रखना है, कैसे हमारा देश को ही रिप्रेजेंट